دخلی ظلم کے ضابطے نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیار شمسی۔ ناظرین، آپ اس فورم سے روز سیاست پر بھی بات سنتے ہیں، حکومتوں کی بھی بات ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم اصل اس فورم کا مقصد عوام ہے، جن کے نام پر سب سیاست بھی ہوتی ہے، حکومتیں بھی بنتی ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ براہ راست عوام سے متعلق ہے۔ میں آج چکوال میں ہوں اور میرے ساتھ چکوال کے جو یہاں کا مشہور بازار ہے چھپڑ بازار، وہاں 460 جو دکاندار ہیں ان کو ایک بحرانی کیفیت کا سامنا ہے اور ان کو جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے وہ دکانیں خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، کوئی 8-9 مہینے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے یونین اور انتظامیہ کے درمیان کچھ معاہدے بھی طے پائے، اور جس میں بنیادی مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ کوئی دکاندار بڑے ہیں، کوئی چھوٹے دکاندار ہیں، پرچون والے ہیں، اور ان سے جو دکانیں خالی کرانے کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ آپ 460 خاندانوں کو ایک بے روزگاری اور بھوک کے حوالے کر دیں۔ اس حوالے سے چونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، میں نے آج یہاں تمام مدعو کیا ہے دوستوں کو، اور اس میں جو مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں وہ چکوال چیمبر آف کامرس کے بانی چیئرمین ہیں جناب قاضی محمد اکبر صاحب، جن کا ویسے تو تجارت سے تعلق ہے، وہ چیمبر کے صدر بھی ہیں، لیکن وہ ایک بنیادی طور پر سوشل ورکر ہیں، اور وہ جو سماجی ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر وہ ہمیشہ بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ اور آج یہ تمام جو 460 دکاندار ہیں ان کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے ہی آغاز کریں گے اور یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، دکاندار کیا کہتے ہیں، انتظامیہ کا کیا موقف ہے، میونسپل کارپوریشن کے جو آئینی تقاضے ہیں وہ کیا ہیں۔ بلدیہ کی انتظامیہ نے جو ہمیں نوٹس ان لوگوں کو دیے ہیں کہ آپ دکانیں خالی کریں 30 اکتوبر تک اور آپ ایکشن کریں، یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ 460 آدمی اس وقت تاجر ایک شریف آدمی ہے اور کوئی فساد نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن اگر اسے مجبور کر دیا گیا، اس کے بال بچے بے روزگاری کی وجہ سے جب بھوک سے مریں گے تو کیا خیال ہے وہ آپ کے گلے لگائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اب چیمبر سے اور ہماری وجہ سے خاموش ہیں۔ ہم ہر ممکن انتظامیہ سے تعاون کرنے کے لیے تیار اب بھی ہیں کہ فہم و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جہاں تک کرایہ بڑھانے کا تعلق ہے تو بلدیہ کی آمدن میں اضافے کا تعلق ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹھ کے فہم و تفہیم کے ساتھ کرایہ طے کریں، یک طرف آپ پہ نہ ٹھونسے جائیں۔ تو میں یہاں گزارش کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فہم و تفہیم سے ان معاملات کو درست نہ کیا گیا، بلدیہ کے ہمیں پتہ ہے کہ اگر بلدیہ کرایہ تو وہ شہر پہ لگنا ہے۔ یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ آپ کا سابق ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہوا تھا اسی کی روشنی میں معاملے کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ جو نئے نوٹس آئے ہیں ان کو واپس لیتے ہوئے دوبارہ مذاکرات کیے جائیں۔ مذاکرات کیے جائیں اور جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو آن کیا جائے۔ جی، بہت مناسب۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس جو چھپڑ بازار کی دکانداروں کی تنظیم ہے ان کے صدر جی ہمارے ساتھ خواجہ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں۔ یہ جو چھپڑ بازار کے دکاندار ہیں ان کے صدر ہیں، خود بھی ایک دکاندار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تجارت کرتے ہیں لوگ، جو ایک روزگار کا ایک جائز طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو ایک سہولت دی جانی چاہیے، اور خاص طور پر آج کے حالات میں کاروبار بند ہونے کے بجائے آگے بڑھنے چاہیے۔ جی خواجہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟
हमारे किरायों का मसला है जी, जी, बताइए। ये हमें बेदखल करना चाहते हैं कि खाली करो, हम नीलाम करेंगे। फिर उन्होंने कमिटमेंट की कि बैठ के मामला हल करेंगे, लेकिन ये उस पर नहीं आ रहे। इसके बाद ये मेरे सेक्रेटरी ब्रीफ करेगा। नहीं, आप ये बताएं ना कि आप सदर हैं, अगर ये मामला आपका हल नहीं होता तो आप फिर क्या करेंगे? आप अदालतों में जाएंगे, एहतजाज करेंगे, कैसे आप? एहतजाज हमारे हक है, एहतजाज हम भरपूर करेंगे। जी जी, जहाँ पर हमें रसाई मिलेगी हम वहाँ तक जाएंगे। आप इस मामले से कानूनी तौर पर निपटेंगे। जाहिर है कि वो जो इंतज़ामिया है वो भी कानून के तहत आपसे किराया बढ़ाने की बात करती है। जाहिर है कि अदारे जो होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो टैक्सेस पर चलते हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? हम किराया बढ़ाने को तैयार हैं जी, किराया बढ़ाने को हम तैयार हैं। जो मुनासिब किराया है, जायज़ है, अलग-अलग मार्केट है, कैटेगरियाँ बढ़ाई जाए, उस हिसाब से किराया बढ़ाया जाए। मतलब कैटेगरीज बनाई, जो बड़ा दुकानदार है उसको उसके हिसाब से इजाफा किया जाए, जो छोटा दुकानदार है उसको उसकी बसात के मुताबिक उस पर, जो मार्केटें बिल्कुल ख़त्म है उनके हिसाब से मैं किराया। अरशद महमूद चिश्ती साहब से दरख्वास्त है कि वो हमारे करीब आएँ और अपना जो मसला है वो ब्रीफली हम बताएं, ताकि एक मुनासिब अंदाज में इस मसले का हल तलाश किया जा सके। जी जी सर, सबसे पहले तो ये मसला है जी कि तकरीबन ये 460 दुकानें हैं। जी जी, तो इससे पहले जो भी पोजीशन होती थी वो 5 साल के बाद बल्दिया में हमें बुला के तो वहाँ पे उसका जो लाए अमल होता था वो गुफ्त शुनीद किया करके 10% 11% पे हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिए जाते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट पंजाब ने 2018 को कोई एक्ट नया बनाया, उसके मुताबिक ये तकरीबन पूरे पंजाब में पोजीशन जारी है। लेकिन ये है कि अब जो चकवाल की जो रेंट असेसमेंट कमेटी है उसने जो लिस्ट तरतीब दी है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। यानी कि जो दुकान अब मतलब 500 रुपये किराए पे है, उन्होंने उसका किराया 3000 4000 कहीं 300% कहीं 400% इस तरह करके इजाफा कर दिया है। तो हमारी क्योंकि काजी साहब ने जो अब्दुल सानी साहब DC से उनके साथ उनकी कमिटमेंट थी कि जो रेंट असेसमेंट कमेटी के 3 या 4 मेंबर होंगे तो उसी तरह बल्दिया के दुकानदारों के भी 3-4 मेंबर आप रखेंगे तो रल मिल के बैठ के उसमें जो कोई तब्दीली करनी है वो करके मुनासिब किराया बढ़ा के उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। चिश्ती साहब, आपने तफसील से बात की है। हमारा काम है इस रास्ता न्यूज़ के ज़रिए आपका पैगाम हुकूमत वक्त तक पहुँचाना। नाज़रीन, इस आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो दीगर यूनियन के ओहदेदारान मौजूद हैं उनसे भी हम तफसीली बात करेंगे कि आखिर ये मसला कैसे हल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान CR शमसी। और आज इस वक्त हम चकवाल के मरकज़ी बाज़ार छप्पड़ बाज़ार में मौजूद हैं और जहां इस बाज़ार की जो यूनियन है उसके मुख्तलिफ नुमाइंदे भी मौजूद हैं और जहां छोटे बड़े जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं। और इनका मसला ये है कि ये कोई 400 से ज़ायद दुकानदार हैं जिनको ये दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया है। ज़ाहिर है कि सरकारी अदारे जो होते हैं उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ये दुकानें हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो कानून के मुताबिक हमारे कानून किराए में इजाफा है या उसका जो अदायगी है वो तय किए जाए और जो भी किराए का तयन है वो कैटेगरीज वाइज किया जाए कि जो छोटा दुकानदार है उसको उसके हिसाब से बोझ डाला जाए, जो बड़ा दुकानदार है उसको उस हिसाब से उसका किराया तय किया जाए। बहरहाल ये क्योंकि लोग मौजूद हैं ये खुद आपसे बात करेंगे। हमको कब्ज़ा माफिया नहीं है, हम कोई ऐसे दहशतगर्द नहीं है। हम इस शहर के, इस इलाके के, इस मुल्क के बाइज़्ज़त और रोज़ी कमाने वाले लोग हैं।
हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है कि अगर आपका 10% बुनियादी मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि हमारा 10% जो सालाना बढ़ता है किराए का, वो भी तो बल्दिया नहीं मुंतखब किया हुआ किराया ना, हमने कोई अपने घर से तो नहीं मुंतखब किया। अब हमारा मुतालबा ये है कि अगर 10% आप सालाना बढ़ा रहे हैं तो वो तो हम दे रहे हैं आपको। इस नोटिस के बाद आपने जो डीसी साहब हैं या जो आपके चैम्बर के मरकजी रहनुमा हैं काजी मोहम्मद अकबर साहब, वो इस हवाले से बड़े आपका साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या उनसे भी कोई बात हुई? जी बिल्कुल, बात हमारी मुसलसल उनके साथ हो रही है, चैम्बर के साथ। चैम्बर हमारा भरपूर साथ दे रही है और हम चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। हमने वो भी देखा कि जो जिन्होंने अरबों खरबों रुपए इस मुल्क के लूटे हैं, वो तो संडे को भी रात को भी अदालतें लगी हैं और फैसले हुए हैं। तो हमारा क्या कसूर है? हम तो किराया बाकायदगी के साथ अदा कर रहे हैं। हमारा कसूर यह है कि हम पुरअमन शहरी। हमारे और चैम्बर के साथ मिलकर हमारी यूनियन ने डीसीओ साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए थे और डीसीओ साहब ने बड़ी मेहरबानी की थी कि उन्होंने नीलामी मनसूख कर दी थी, क्योंकि हम सारे ताजर इकट्ठे थे। 458 दुकान हम मुतहद हो गए थे, एक प्लेटफार्म पर आ गए थे। तो हमारी नीलामी अभी भी हम मुतहद है, 458 दुकान नहीं, पूरे शहर मुतहद है अल्लाह के फजल से, और हमारी नीलामी मनसूख हो गई थी। एक बात तय पाई थी डीसीओ साहब ने कि जो किराए की असेसमेंट होगी वो 5 रुकनी टीम इंतज़ामिया की होगी और 5 रुकनी टीम जो ताजरों की होगी। तो उस पर हमारे जो है उस पर मुतालबात मंजूर हुए थे कि अभी उसको नीलामी को मनसूख करते हैं। बाकी हर साल 10% बढ़ा के किराया दे रहे हैं। जी ठीक है, तो खुदारा हमारे पे तरस करें, हमारे बच्चे की रोज़ी लगी हुई है, ठीक है, हमें मजबूर न करें कि हम रोड पे आ जाएं। बल्दिया हमारे साथ बिल्कुल नाजायज़ करेंगे। ये कभी 100% बढ़ा रही है, कभी 200%, आज तक हमने ना देखा है ना सुना है। हम बाकायदगी से हर साल 10% बढ़ाते हैं किराया, और वो कहते हैं कि साथ वाली मार्केटों का किराया देख लो, इधर सर 7,000, 5,000, 6,000 रुपये भी मार्केटें लगी हुई हैं हमारे साथ जो, और हमारा किराया वो कह रहे हैं कि 18,000 रुपये। इसका कोई सर सिरा कलाम हमें तो नज़र नहीं आता है। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ दूर। बहुत खूबसूरत बात की आपने जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ करवाइए जी। मेरा नाम अमजद अली है, मैं अनारकली बाज़ार से हूँ। हमारे दुकानों के किराए पहले ही 25,000 30,000 के लगभग हैं। हमारे से 40 साल से मेरे दादा अबू थे पहले, फिर मेरे बुज़ुर्ग, और अब मैं 40 साल से किराया वक्त पे अदा कर रहे हैं। हर साल 10% किराया बढ़ता है, हम देते हैं। हमारा किराया तारीख से कभी आज तक 40 साल में लेट भी नहीं हुआ। इंतज़ामिया और ये हुकूमत जिसका मंशूर ये था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या इसका ये मंशूर है कि जो रोज़गार पे लगे हुए हैं उनको भी यहाँ से ख़त्म किया जाए? क्या ये इसका मंशूर है? क्या हम बेरोज़गार होंगे तो हमारे बच्चे अनपढ़ नहीं होंगे? क्या हमारे बच्चे जब अनपढ़ हो जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे फिर भीख नहीं मांगेंगे? क्या हमारे बच्चे इस मुल्क के आगे किस तरह लेके जाएंगे? क्या हमारा ये जो ज़िला चकवाल है इसका हाल वही करना है जो शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों को हुआ है, जो वाजोड़ एजेंसियों को हुआ है? खुदारा इंतज़ामिया से अपील है, हमारे साथ बैठकर जो मामलात हैं वो तय करें, हमें रोडों पे लाकर मजबूर न करें। ये ना हो कि हम अपने बच्चों को भी उठाकर रोडों पे आ जाएं। और इंतज़ामिया के साथ हमारे मामलात जो हैं, हमारी आपसे अपील है, इंतज़ामिया से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब से अपील है और इमरान खान साहब से अपील है, जिनका ये विजन था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खुदारा वो हमारी बात सुने, हमारे मुतालबात को माना जाए, जो हमारा जायज़ कराया है उसको कंटिन्यू किया जाए। ये ना हो कि हम जो रोज़गार अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं उससे भी हम जाएं। खुदारा हमारी दाद रसी की जाए।
यकीनन दाद रसी के लिए आवाज़ उठाना पड़ती है। तो मैंने अपने नाम ये शॉप ट्रांसफ़र कराई है जिसकी फीस 1,68,000 तकरीबन पे की है। हम तकरीबन 60 साल से बाकायदगी से यह किराया अदा करते जा रहे हैं और कभी एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया हमने किराया डिले किया हो। अब हालात ये बन गए हैं कि कोरोना की वजह से मईशत बुरी तरह बदहाल है और दुकानदार सख्त परेशान है। ऐसे हालात में इतना ज़्यादा किराया कोई दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता। इस किराए में ना हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, ना अपना ख़ानदान चला सकते हैं, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। आप शौकत साहब, आपके जो नुमाइंदे इस वक्त इंतज़ामिया से मुज़ाकरात कर रहे हैं वो यकीनन आपका केस पेश कर रहे हैं, क्या आपको उन पर इत्मीनान नहीं है? जी बिल्कुल, हमें उन पर इत्मीनान है और वो भी हमारे भाई हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह DCO साहब हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और हमारे हक़ में जो बेहतर फैसला वो ज़रूर करेंगे। इसी महीने में किराया अदा करने के लिए दिया तो उन्होंने मुझे नोटिस पहले आया था कि आप 32,000 देंगे। अब सालाना भत्ता तो है 10%, लेकिन वो तकरीबन 22 से 32 कर रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है, अपील है कि इसके बारे में कुछ मुनासिब फैसला किया जाए, तय किया जाए। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे बातचीत की जाए, कुछ ख्याल किया जाए। बेरोज़गारी है, महंगाई है, बहुत से मसाइल हैं वहाँ के। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। महंगाई भी है और परेशानी भी है। और जी आप अपना तारफ़ करवाएं, आपसे तो रात को भी मुलाकात हुई थी। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सब आवाम ने जो बातें की हैं, आप इनके नुमाइंदे हैं? जी मैं मुतासर हूँ जी, मुतासरीन में हूँ मैं। हाँ जी जी बताइए। तो हमारा भी जिस तरह सब भाइयों ने जो है वो बात की है, हमारा भी पुरज़ोर मुतालबा है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जो वो अपना एक व्यू लेकर आए थे कि मैं जो है मुल्क में इंसाफ और अदल का जो है वो बोलबाला होगा, लेकिन जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स हमारे साथ जो है वो मामला चलाए जा रहे हैं। और उस्मान बुज़दार साहब भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और चकवाल की जो इंतज़ामिया है वो भी अकदर्मी का जो है वो मुज़ाहरा कर रही है। तो मैं जो है वो हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हमारी तरफ से इस तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर हम जो है अपने हक़ के लिए जो हर तरह का जो है वो। यहाँ एक तो आपकी तंजीमें हैं, दूसरा यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNA हैं, MPAs हैं, उनसे आपका रब्ता हुआ? जी शुरू में जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब MNA जो हैं उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो इस फोरम इस मामले को जो है वो DC साहब के सामने पेश किया था और हम उनके मशकूर हैं। लेकिन उसके बाद पुरस्कार तौर पर जो है उनकी तरफ से भी खामोशी छा गई है और स्पेशली MPA साहब जो है जो इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से जो है वो ताजरों के मामलात को जो है बिल्कुल पस पुश डाल दिया गया और एक लफ्ज़ भी उन्होंने आज तक किसी फोरम पे नहीं उठाया कि चकवाल के ताजर जो है वो इस हद तक परेशान है और उन्होंने जो है वो हमारी आवाज़ बनना भी गवारा नहीं किया, जिसके लिए हम पुरज़ोर जो है वो उसकी मज़म्मत करते हैं। जी अवामी नुमाइंदों से भी शिकायत हो रही हैं और ज़ाहिर है कि जो मुख्तलिफ नुमाइंदे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम से आवाज़ सुने। और आज हम इसीलिए यहाँ छप्पड़ बाज़ार में हैं, ये लोग बोल रहे हैं जिनसे आप वोट देते हैं, उनकी आवाज़ यहाँ आकर सुने। जी आप अपना तारफ़ करवाइए। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, मैं जनरल बस स्टैंड से। जी जी। तो मेरा जो इशू है वो यही है कि जो इन्होंने अभी एक तो किराया बढ़ाने वालों का जो है प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो बेदखली वाला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बेदखली और ये जो नीलामी हो रही है, ठीक है की जाए नीलामी, बेदखली हो रही है जो भी किया जा रहा है। अभी इसमें हम लोग जो 40 साल से 50 साल से बैठे हुए हैं, 40-50 साल से बंदे जो बैठ के अब वो वहाँ से निकल के कहाँ पर जाएंगे? तो जो दूसरे बंदों ने भी आना है उन्होंने भी यही करना है कि उन्होंने भी आपको बल्दिया को किराया देना है। तो मैं ये मेरा जो सवाल है बल्दिया से या गवर्नमेंट से वो ये सवाल है कि उन लोगों ने भी किराया देना और हम लोगों ने भी किराया देना, हमारे साथ ही एडजस्टमेंट की जाए और जो भी नीलामी है उसको रोका जाए, खसूसी तौर पे उसको रोका जाए, नीलामी वाला जो मामला है। अब जो 460 बंदा ये यहाँ से निकल के वो अभी वो कहाँ पे नया कारोबार बनाएगा? 6 महीने साल लग जाएंगे उनको ढूंढते ढूंढते, भाई कहाँ पे दुकान ढूंढे, उसके 6 महीने वो कहाँ से बच्चों को रिज़्क देगा अपना कमा के?
तो मेरा जो ख़ुसूसी तौर पे उस्मान बुज़ाद साहब हैं जो हमारे वज़ीर आला हैं और बल्दिया वालों से यही सिर्फ एक सवाल है कि ये जो आपने ये 460 ख़ानदानों को उनका रिज़्क बंद करना है, उनको नीलामी के लिए आपने पेश करना है, तो वो ये कहाँ पर जाएंगे? बस मेरा यही सवाल है। बेदखली जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस नशिस्त में छप्पड़ बाज़ार के सीनियर जो दुकानदार हैं जो कई बरसों से वहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जनाब मोहम्मद सफदर साहब मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे आप? मेरा इंतज़ामिया से इल्तमास है कि तकरीबन जो जितने भी दुकानदार हैं जो पहले जो किराया चल उसी भी किराए पे ही वो इस पर हमारा एग्रीमेंट करें, क्योंकि पहले ही किराया बहुत ज़्यादा है। बिजनेस बिल के कोरोना के बाद बिल्कुल कारोबार है ही नहीं। सब देखिए, आप सुबह चेक कर ले, इंतजामियों को चाहिए कि वहाँ पर सर्वे करे और कारोबार को चेक करें कि कितने कारोबार है, कौन कारोबार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। एक कारोबार सुबह दुकानदार जाता है, शाम को हैसियत की निगाहों से वापस चले जाता है, कोई कारोबार नहीं है। इस इंतजामिया से इल्तमास है कि जो किराया पहले है वो भी बहुत ज़्यादा है, इन पर हमारे साथ कमिटमेंट की जाए और वहाँ पर हमारे वही किराए होने चाहिए। इससे ज़्यादा किराए हम नहीं दे सकते। आप हुकूमत वक्त से क्या कहेंगे जिनका वादा है कि वो मुल्क में 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे? अगर आपका ये मसला हल नहीं होता तो ये तो बहुत बड़ी बेरोजगारी आ जाएगी। यहाँ पर आप समझिए कि 460 दुकानदार नहीं है तो 5-6 हज़ार बंदा बनता है। ये इनको बेरोजगार कर रहे हैं। आगे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग तड़फ रहे हैं। लेकिन आप जो कानूनी तौर पर आप पर किराया इजाफा होता है वो मामूल की बात है, तो क्या आप देने को तैयार हैं? 10% तो हमने इस सदर साहब ने वहाँ फिर दिया है, 10% बढ़ाया उन्होंने किराया हमारा। मलक ताहिर साहब ये मुतासरीन में से हैं। नाज़रीन, इनसे सुनते हैं क्या कहानी है। सर, स्टार्ट ये है कि ये छप्पड़ बाज़ार जैसे छप्पड़ के नाम से मशहूर है, ये गंदगी का ढेर था जिससे हमारे आबा अजदाद ने इसे आबाद किया है और पिछले 60 साल से ये एज इट इज़ चल रहा है। हर 5 साल बाद उसका रिव्न्यू होता है, एग्रीमेंट 10% बढ़ा के। तो इस दफ़ा कोई पहली दफ़ा 60 सालों में वो इन्होंने हमें नोटिस भेजे हैं कि आप विद इन 1 मंथ खाली करें और इसकी ऑप्शन होगी, जो नहायत ही ज़्यादती है। हम यही चाहते हैं कि एज इट इज़ जैसे पहले चल रहा है सिलसिला, उसी बुनियादों पे हमारे साथ वो 10% पे हमारे साथ वो एग्रीमेंट दोबारा किए जाए। यही इसका बाज़ार का नाम है जो छप्पड़ के किनारों पे आबाद हुआ था, चंद दुकानों पे जहाँ बदबू थी। हमारे आबा अजदाद ने इसे शहर बनाया है, इससे तब्दील किया है। आप समझते हैं कि ये नाम तब्दील होना चाहिए कि नहीं? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नाम तो इसका एज इट इज़ ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ये वर्षा की निशानियाँ हैं। नहीं, वर्षा की निशानियाँ कोई छप्पड़ तो नहीं है ना सर? नाम एक मशहूर हो गया है, बच्चे बच्चे के नाम पे है छप्पड़ बाज़ार, और भी बाज़ार साथ लगते हैं, पर इससे एक मशहूरी है कि छप्पड़ बाज़ार है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शमसी साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हमने ये मौका फराहम किया है कि आपके चैनल के तवज्जुह से हम अपना जो मसला है दुकानों के हवाले से वो जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकें। तो छप्पड़ बाज़ार का मसला, जैसे मेरे तमाम दोस्तों ने इससे पहले बयान किया है कि 460 दुकानदार हैं और हमारे साथ जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती जो है वो की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि जो कमिटमेंट्स जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी सदर जनाब काजी अकबर साहब के साथ अब्दुलसत्तार एहसानी साहब ने की थी, उस कमिटमेंट को कंटिन्यू किया जाए और हमें जो है वो उस मुज़ाकराती टीम में ताजरों को और इंतज़ामिया के जो मेम्बरान हैं उनको एक जगह पे बिठा के तो ये मामला जो है वो तय किए। लेकिन मुझे याद है एक तकरीब हुई थी, काजी अकबर साहब ने भी की थी, वहाँ तो मुक़ामी असम्बली के जो मोअज़्ज़ज़ रुकन थे उन्होंने वादा किया था कि वो आपका मसला हल करेंगे। जी बिल्कुल, हम जो है ज़ुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब के भी शुक्रगुजार हैं। वाकई उन्होंने जो है वो उन्होंने इस ताजरों के उस फोरम में आके वादा भी किया था और उन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई थी।
लेकिन उसके बाद जो है वो मुकम्मल खामोशी छा गई है। कोई इस मामले को जो है वो ऊपर की सतह पे जो है वो नहीं ले जाएगा। स्पेशली वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में ये बात नहीं लाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये बात नहीं लाई गई। चूँकि आप वज़ीर आज़म साहब को इस फोरम से क्या पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे वज़ीर आला जो हैं सूबे के सरबराह हैं, उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो? जी, मैं स्पेशली इमरान खान साहब से ये मेरी दरख्वास्त है, हम सब ताजर जो है मैं उनकी तरफ से भी ये अपील करता हूँ कि जिस तरह आप जो है एक जो अपना लेके आए थे एक मौक़िफ़ कि जो है वो ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा, तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है इसको जो है इस मामले को देखें। और नाज़रीन, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की कि वज़ीर आज़म साहब आप इस वादे पर आए थे कि आप इंसाफ करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, और इस वक्त ये यकीनन जो छप्पड़ बाज़ार है, यहाँ के हज़ारों लोग जो हैं, फैमिलीज़ जो हैं, इस वक्त शदीद कर्ब में हैं, इस्तराब में हैं, और इनकी ये जो आवाज़ है ये आपके इस फोरम के ज़रिए पहुँचाई जा रही है। और नाज़रीन, हम इस मामले में रास्ता न्यूज़ के हवाले से इस मामले की मज़ीद भी पैरवी करेंगे, फॉलो अप भी देंगे, और कोशिश करेंगे कि छप्पड़ बाज़ार में जाकर बराह रास्त वहाँ जो बाकी दुकानदार हैं, ये तो आज हमारे पास नुमाइंदे आए थे, उनसे भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन मजमूई तौर पर हम समझते हैं कि काजी मोहम्मद अकबर साहब जिन्होंने इस सारे मुकदमे को एक अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, वो एक मौसर अंदाज में इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी तवक्को रखते हैं कि इंतज़ामिया भी इन दुकानदारों का जो नुक्ता नज़र है, जो मसला है, वो हमदर्दी से सुने और कानून के दायरे में ये मसला हल किया जाए, ताकि कोई बेरोज़गारी का एक नया रेला हमारे सामने ना आ खड़ा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।